One more verse before I close. एक और वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। 1 John and chapter 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय। Here it's talking about the coming of the Lord. वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। And maybe we can start in chapter 2 and verse 28. 2 उसके 28 से आरंभ कर सकते हैं। And read up to chapter 3 verse 3. 3 उसके 3 तक पढ़ सकते हैं। It's talking about the coming of the Lord. ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा How है। to be ready for the coming of the Lord. किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो It's सकते हैं। talking to believers. यहाँ पे विश्वासियों से बात कर रहे हैं, Little children. बालकों से, This छोटे is बच्चों से। 95-year-old John speaking to believers. यहाँ पे 95 साल का जो एक वृद्ध यूहन्ना वो अपने विश्वासियों से बात कर रहा है। He says when Jesus appears, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रकट होगा, there'll be 2 groups of believers. तो 2 प्रकार के विश्वासी होंगे। Listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Everybody here. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान There'll दें। be 2 groups among 2 you when झुंड Jesus होंगे। comes. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो 2 झुंड होंगे, मसीह लोगों के 2 झुंड। It's not Protestants and Catholics. ये कैथलिक और प्रोटेस्टेंट नहीं, It's not Pentecostal, non-Pentecostal. पेंटिकोस्टल और गैर पेंटिकोस्टल लोग नहीं। There's another type of division here. यहाँ पे अलग ही प्रकार का एक भिन्नता होगा। Those who have boldness to meet him when he comes. जिन लोगों के अंदर हिया साहस रहेगा उससे मिलने के लिए, And those who are ashamed and shrink away from him when he comes. और उसके सामने जो लज्जित महसूस करेंगे वो You see लोग। those 2 categories here in verse 28? यहाँ पे 28 में देखिएगा 2 झुंड के लोग, That means when the Lord comes, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, he'll say, "Hey Lord, I'm ready to meet you." एक ऐसे झुंड के लोग हैं वो ऐसे बोलेंगे, हाँ प्रभु जल्दी आ, हम तैयार हैं तुझसे Because मिलने के लिए, they've kept their conscience clear all the time. क्योंकि उन्होंने अपने विवेक को हमेशा निर्दोष रखा है। Others will shrink away और दूसरे ऐसे झुंड के लोग हैं जो भागेंगे वहां से, because they're not ready. क्योंकि वो तैयार नहीं है। You remember what Jesus said in Luke's gospel? लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, याद Let me रखें। show you that in relation to his second coming. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में मैं दिखाना चाहता हूँ। Luke's gospel लूका रचित सुसमाचार and chapter 17 17वां अध्याय and verse 31. 31 17 उसका Verse 31 30, it shall be just the same on the day when the Son of Man is revealed. Verse 30. 30 में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। In that day, उस दिन when Jesus comes, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, on that day, उस दिन 2 things he says. 2 बातें लिखा है। The one who is on the housetop should not go down to the house to take his goods. और उसका यानी कि जो घर के ऊपर है वो नीचे ना आए अपने सामान लेने के लिए। That means he should not have to say, "Hey Lord, some of my things are here, I want to be attached to them." He's detached from his earthly goods. इसका मतलब जो अपने घर के ऊपरी कोठरी पे है वो नीचे सामान लेने ना जाए। इसका मतलब यह है कि सांसारिक वस्तुओं से अलग आओ। And in another place he said, if you're in the field, you shouldn't have to go back to your house. अगर जो आप खेत में हैं तो आपको पीछे लौटकर घर में नहीं जाना है। That means, say, "Lord, don't come yet. I've had a fight with my wife this morning. I haven't settled it. So let me go back home and settle that before you come." तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी अभी मत आओ, क्योंकि अभी आज सुबह मैं अपनी बीवी से लड़कर आया हूँ, पहले जाके मुझे अपना रिश्ता सही करने दो फिर तू आना। Today it's not the field, it's the office. Maybe you went to the office after having a fight with your wife. हाँ, ऐसा उस जमाने में खेत होता था, लेकिन आज हो सकता है कि ऑफिस, And आप ऑफिस में हो You didn't settle it. और आपने उसको जो है अच्छा And संबंध the Lord वापस नहीं comes. किया और आ जाए And the Lord comes and you're not ready. और प्रभु आ जाए और हम तैयार ना हो। So there are 2 groups that will be there when the Lord comes. तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में इस प्रकार के 2 वहाँ पे One झुंड who say, होंगे। "Lord, I'm ready." तो एक बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं Because they're तैयार हूँ, always ready. क्योंकि वो हमेशा They से always तैयार keep their हैं। conscience clear. वो अपने विवेक को हमेशा निर्दोष If रखते they हैं। hurt somebody, they apologize immediately. अगर जो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एकदम से माफी मांगते हैं। They apologize to their wife before going to the office. ऑफिस जाने से पहले ही वो अपनी बीवी से माफी मांग So लेते they are हैं। ready to meet the Lord even if the Lord comes when they are there. हाँ, अगर जो वो ऑफिस में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह का सामना करने के लिए तैयार हैं। And the others shrink away from shame. और and दूसरे झुंड के ऐसे लोग हैं जो कि लज्जा महसूस करते हैं और वो पीछे हटते shame. हैं। 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना 3 It says here, when verse 2 middle, when Jesus appears, we'll be like him. और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उसके समान हो जाएंगे, Because we will see him. क्योंकि हम वैसा उसे देखेंगे। There are 2 things that are going to happen when Christ comes. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो 2 बातें होंगी। It says here, one, I'll see him. यहाँ पे पहला मैं उसको देखूंगा, Second, I'll be like him.
और दूसरा मैं उसके समान हो Many जाऊंगा। people only think of one, I'll see him. कई लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि मैं उसको देखूंगा, But the more important part is I'll be like him. लेकिन उससे भी प्रमुख बात यह है कि मैं उसके समान बन जाऊंगा। It says here in verse 3, 3 में लिखा हुआ है, everyone, और हर एक कोई, that includes you. यानी कि आप, If you want to be in this everyone, अगर जो आप इस हर कोई में who जुड़ना चाहते has हैं the तो hope of Christ coming, तो परमेश्वर के आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा let है। me ask you, all of you sitting here, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, do you have the hope of the second coming of Christ? क्या आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा है? I think all of you will say yes. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हर एक लोग मानेंगे। Okay. Please wait, let me finish, then give me an answer. इंतजार करें, पहले हम खत्म करें, उसके बाद जवाब देना। It says, if you have this hope, यहाँ पे लिखा है, अगर जो आपके अंदर ये आशा है, you will be purifying yourself all the time until you become like Jesus. तो लिखा है कि आपको वैसा ही पवित्र करते रहना है जैसा वह पवित्र है। Are you purifying yourself? क्या आप अपने आप को पवित्र बना के रखते हैं? Are you a little holier this year compared to last year? क्या पिछले साल से इस साल आप ज्यादा पवित्रता की जीवन जी रहे हैं? Have you got a little more victory over your anger this year than last year? पिछले साल से इस साल आपने अपने क्रोध पर काबू किया है क्या? Have you got a little more victory over your dirty thoughts क्या than you had आपने last year? बुरे विचारों के ऊपर जय प्राप्त किया है पिछले साल से अधिक इस साल? Last year some people you did not forgive. Now have you forgiven everybody? पिछले साल जिस किसी को आपने माफ नहीं किया था, क्या इस साल आपने माफ किया? Have you become a little more detached from earthly goods this year? क्या आप सांसारिक वस्तुओं से थोड़ा और अलगाव अपने जीवन में पैदा किया? Or with a higher income that you're getting in your office, are you more entrenched in earthly goods? या फिर ज्यादा पगार बढ़ने के कारण और सांसारिक बातों में आपका ध्यान है? Then you're not purifying yourself. तो आप अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं। Then according to verse 3, you do not have the hope of the second coming of Christ. तो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा नहीं है। Don't fool yourself. अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं। There are two things that are going to happen when he comes. दो बातें होंगी जब वो We आएगा। will see him and we'll be like him. हम उसको देखेंगे And और उसके समान बन जाएंगे। If you have the hope of being like him, अगर जो आपके अंदर आशा है कि मैं भी उसके समान बन जाऊंगा, today you will purify yourself तो आज ही आप अपने आप को पवित्र करेंगे so that you can be ready for his coming. ताकि आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। That is how we are ready for his coming. और इस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं अपने आप को उसके आगमन के लिए। You know what Jesus said further in Luke 17 लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? after saying that you must be ready to go wherever you are. Wherever you are in the field or the office, you must be ready to go. हाँ, जहाँ कहीं पे भी आप रहोगे, चाहे खेत में हो या नीचे घर के कमरे में, तो आपको तैयार होना चाहिए जाने के लिए। He said, remember Lot's wife, verse 32. 32 में लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। It's a picture of Lot and his wife were going out of Sodom. यहाँ पे देखिएगा लूत और उसकी पत्नी जो कि सोदोम छोड़कर जा रहे थे, उसके बारे में यहाँ पे एक चित्र दिया It's है। a picture of our going up to meet the Lord away from the earth. और ये वही चित्र है जो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे, वो वाला। But suddenly Lot's wife got left behind. लेकिन देखिएगा लोत की बीबी वहीं पर रह गई। He says, be careful, that doesn't happen to you. तो वो बोलते हैं कि स्मरण रखें ऐसा आपके साथ ना हो। Why? क्यों? Because as she was going, she looked back. जैसे ही वो जा रही थी उस शहर को छोड़कर, उसने अपना गर्दन पीछे मोड़कर देखा। Lord, my saris are here. हाँ, उसने बोला कि अरे प्रभु, मेरी साड़ी यहीं पे छूट गई है, All my wealth is here. मेरा धन दौलत यहीं पे है। The Lord says, stay there then. तो प्रभु ने कहा कि वहीं पे रहो। And he's saying that in relation to his second coming. और ये दूसरे आगमन के संबंध में कह रहा है। I want to ask you, are you purifying yourself? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने आप को पवित्र करते हैं या नहीं? You can use all the good earthly things God gives you. इस संसार में जो कुछ अच्छी बातें, आप उन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। Whether you have one car or some of you may need 2 cars in your house, okay. आपके में से कई लोगों के पास एक कार हो सकता है, 2 कार हो सकता है, कोई बात नहीं। Nothing wrong in what you have. उसमें कोई गलती नहीं है या But कुछ if प्रॉब्लम you नहीं, are समस्या नहीं। attached to any of them, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को जुड़ जाते हैं, जोड़ देते हैं, तो you won't be ready to go. आप तैयार नहीं है जाने के लिए।
Lot was ready to leave everything and go. लोत तैयार था सब कुछ छोड़कर जाने के लिए, Lot's wife was not ready to leave everything and go. लेकिन लोत की जो पत्नी है वो तैयार नहीं थी सब कुछ त्याग कर जाने के लिए। As long as we are here, as long as they were in Sodom, Lot and his wife both enjoyed everything जब तक वो इस संसार में थे उन दोनों ने सब चीजों का आनंद in उठाया Sodom. सोदोम में रहते हुए। But when the time to go, Lot said, "Yeah, I'm leaving everything. I'm not interested." जैसे इस समय आया लोत ने कहा कि इन सब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, वो छोड़कर चला गया। So what I learned from that is, इससे मैंने क्या सीखा, if I have an attachment to something on this earth, अगर जो धरती की किसी भी बातों में मेरा दिल लग जाए, it means more to me than Jesus Christ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा किसी चीज में मेरे को मतलब है, तो I'm not ready for His coming. तो मैं तैयार नहीं हूँ। May God help us. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, जैसे हम अपने सर को झुकाते हैं, please help us to take these things seriously, इन सब चीजों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने के लिए तुम्हारी मदद कर, because they concern our eternal destiny. क्योंकि ये सब हमारे जो अनंत काल का जीवन से जुड़ा हुआ है। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन।